Hello everyone, I hope you're doing absolutely well. My name is Gautam and welcome back to my channel. So sir, welcome है आपका in a new video, in a new series I should say. So this series that I'm talking about is 100 mega MCQs जिसमें for every topic area, be it equity, be it portfolio management, be it ethics, we'll come out with a list of 100 questions where you practice, you're able to consolidate concepts and उससे आपकी question solving भी हो जाएगी, confidence भी एक आ जाएगा और questions जिनसे solve नहीं हो पाते हैं you'll get into the flow of solving questions. Okay, so this is a new series we are coming out with. So there'll be a list of 100 questions. Abhi today we'll practice just 24, 25 out of them. We'll bring them in a phased manner, multiple episodes, 1, 2, 3. So this is episode 1 of 4, wherein we practice, we'll do a lot of question solving. The best thing is if you're able to solve before me or while we are solving at the same time. And the best would be at that point in time, if you're not able to solve, once just recollect as to why, what is the gap, कोई concept में कोई कमी रह गई है. If it is, put an asterisk, कोई star mark कर दो and go back to that concept, read it through your notes. या अगर आपने notes पढ़े कोई बनाए हैं आपने, read through those notes. If you have any query, you can comment it down. I'll be happy to help. You can reach out to me on Telegram, on LinkedIn, on Instagram, anywhere. And we can sit and we can draft up like how to proceed ahead. So this is a new thing, a new concept, an attempt wherein I am able to instill a lot of confidence in you because preparation सबकी हो जाती है. The most important thing is questions, है ना. तो the more questions you are able to solve, वो confidence खुद ही आ जाएगा. So I am here to instill that confidence in you. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. So today we are starting with equity investments. Let me know if my audio and video is coming fine. Cool, then let's get started. So आज we'll cover just 5 chapters of equity. Assess if you are able to follow. If you're not able to follow, we can come out with more capsule revisions. We can come out with more such mega MCQ batches series wherein we are able to solve more questions. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. Question 1. Let's start with the first chapter, market organization and structure. So question 1 says, which of the following is the least likely function of a financial system? It is an important question. Why? Not because of the topic, but because of the sentence least likely. These negative statements can come in the exam, so very careful. You should see for yourself. Which of the following is not a function? To facilitate in capital allocation of capital, yes, this is. Second, to ensure investors earn at least a risk-free rate, this is not. And lastly, to allow trade of assets, yes. Financial systems, financial markets बने ही इसलिए ताकि हम assets को trade कर सके from one person to another. और कौन help करते हैं trading में? Financial intermediaries, जो middlemen होते हैं. ठीक है, so B is the answer. फिर आ जाता है question 2. A trader sells shares borrowed from a broker. He borrowed it from a broker with the intention of buying them back later at a lower price. तो आपके पास शेयर था नहीं, आप एक ब्रोकर के पास गए, आपने बोला एक शेयर दे दो मुझे, वो आपने सेल कर दिया एंड एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम आप बाद में उसको बाय करोगे और जब आप बाय करोगे यू विल मेक इट गुड टू द ब्रोकर. व्हाट इज दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ शॉर्ट सेलिंग. हमने एक सिक्योरिटी सेल की जो हमारे पास नहीं था, तो वी फर्स्ट बोरो इट, सेल इट एंड देन व्हेन वी रीपरचेज इट देन वी गिव इट बैक टू द ब्रोकर. दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ शॉर्ट सेलिंग. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 3. A buy order with instructions of immediate or cancel. What does it mean? Immediate or cancel. These orders are wherein अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑर्डर दिया टू परचेज 100 शेयर्स, या तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे या नहीं होंगे. अब फॉर एग्जाम्पल 80 शेयर्स हो गए एग्जीक्यूट, बाकी जो 20 हो जाएंगे, अगर ये नहीं हो पाए एग्जीक्यूट फॉर सम ऑड रीज़न तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ ये 80 हो जाएंगे. तो व्हाट इज़ द आंसर? मस्ट बी फुल्ली एग्जीक्यूटेड और कैंसल. अगर फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज़ नॉट एन IOC, दिस इज़ अ फिल और किल ऑर्डर. या तो पूरा फिल कर दो या किल कर दो, ऑर्डर को लेंगे ही नहीं. दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली. पार्शियली फिल्ड ऑर्डर्स विल गेट कैंसल. अगर 20 पास थ्रू नहीं होता तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन? हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज गेट इशूड वेयर वी रेज फंड्स. ठीक है, एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट इज वो जो सिक्योरिटीज हमने इशू करे थे उनकी बाइंग सेलिंग चलती है, उनकी ट्रेडिंग चलती है. तो ऑप्शन ए, अ पेंशन फंड बाइज न्यू
न्यूली इशूड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर, यस दिस इज part of primary market transaction. ठीक है, ऑप्शन बी, an investor sells, this is a secondary market transaction, and a hedge fund shorts the lion shares, this is also a secondary market transaction. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है सर, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट रेगुलेशन। वाई डू वी नीड टू रेगुलेट अ मार्केट? पुलिसिंग क्यों चाहिए होती है हमें मार्केट की? कोई मॉनिटर क्यों करते रहे? क्यों करते रहे? इज इट टू गारंटी इन्वेस्टर रिटर्न्स? हमने ऊपर पढ़ा कि द फाइनेंशियल सिस्टम डज नॉट इंश्योर कि यू आर गेटिंग एट लीस्ट अ रिस्क फ्री रिटर्न, तो ये नहीं होगा। ठीक है, टू मिनिमाइज एजेंसी कॉस्ट, येस दिस इज द आंसर, सो दैट वी आर एबल टू मिनिमाइज एजेंसी कॉस्ट। Lastly, to eliminate price volatility, it is only because of price volatility that we buy and sell securities, we are able to earn a return. तो ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते हम, इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर इज सिक्योरिटी मार्केट इंडिसेस। सिक्योरिटी मार्केट इंडिसेस, डू यू रिमेंबर क्या था? फॉर एग्जांपल ये निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 इज़ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन NSE, is a basket of 50 large cap equity securities, which tells us कि equity market in India इस टाइम पे कैसी चल रही है, large cap securities कैसी चल रही है। ठीक है, so here it says what does a security market index represent? It represents a market segment or an asset class. Yes, it suggests a market. What market? The equity market, the National Stock Exchange. A market segment, it is talking about a large cap segment, not a small cap segment, not a medium cap, mid cap, but a large cap, and or an asset class. It is talking about equity securities, not fixed income, not alternate investments, equity securities. ठीक है सर, यहाँ पे this cannot be the answer because it is not one security. It is a portfolio of securities, a portfolio or a basket of securities. ठीक है सर, डिड वी अंडरस्टैंड? फिर आता है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 says a total return index differs from a price return index. What is the difference between price index and total return index? Total return index includes the dividend जो हमें shares या securities पे मिलता है। तो this reflects the reinvested income from constituents. तो अगर हमने फॉर एग्जांपल ए सिक्योरिटी होल्ड करी है, ये हमें डिविडेंड मिलता गया 100 रुपीज़ का, हमने वापस इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में ताकि हमें और सिक्योरिटीज़ मिल सके। ठीक है, सो दिस इज़ अ टोटल रिटर्न इंडेक्स। इट एक्सक्लूड्स डिविडेंड, इफ इट एक्सक्लूड्स डिविडेंड इट इज़ नोन एज अ प्राइस रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इट इज़ ओनली यूज फॉर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, दिस इज़ नॉट राइट, इट इज़ यूज फॉर एनी सिक्योरिटी। ठीक है, अ प्राइस वेटेड इंडेक्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेते हैं। In a price weighted index, a stock split requires what? Changing constituent weights, adjusting the index factor, or removing the stock. So we know, for example, let's take there are 4 shares in a portfolio. ठीक है सर, A, B, C और D। अब ये जो B सिक्योरिटी है, दिस हैज़ स्प्लिट इनटू 2 शेयर्स, यहाँ पे एक शेयर और यहाँ पे दूसरा शेयर। बट जब अब हम नया इंडेक्स बनाएंगे, हमें तो वहाँ पे सिर्फ 4 चाहिए। A, B का हम पार्ट 1 ले लेंगे, C और D ले लेंगे, है ना। तो जब हम ये कर रहे हैं तो व्हाट डज इट नीड एडजस्टमेंट? इट डज इट नीड एनी एडजस्टमेंट? इट नीड्स एडजस्टमेंट इन व्हाट? एक बार हम इसको क्लास नोट से पढ़ते हैं, दैट विल गिव अ बेटर क्लैरिटी। क्लास नोट्स कहाँ? ये रहे सर। तो इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट, ये क्लास नोट्स में भी है। देयर आर 4 सिक्योरिटीज A, B, C एंड D। ठीक है, प्राइस, व्हाट इज द प्राइस बिफोर स्टॉक स्प्लिट? A was for ₹10, B was for ₹100, C was for ₹40 एंड D was for ₹50। तो ओवरऑल इंडेक्स कितने अमाउंट का है? अगर हम एक 4 स्टॉक इंडेक्स बनाएं, दिस इज ₹200। हाउएवर आफ्टर स्टॉक इंडेक्स, जो आफ्टर स्टॉक स्प्लिट, जो स्टॉक B था, दिस गॉट बाइफरकेटेड इनटू 2 स्टॉक्स ऑफ 50-50 ईच। तो अब जब हम नया इंडेक्स बनाएंगे, हम उसका तो एक ही स्टॉक लेंगे। तो A का तो 10 ही रहा, B का हमने उसको हाफ में कर दिया क्योंकि अब ये डिवाइड हो चुका है। C रिमेन्स द सेम, D रिमेन्स द सेम, तो अब 150 रह गया है। वी वॉन्ट द इंडेक्स टू बी सेम ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो 100 यहाँ पे टू मेक इट सेम, क्योंकि ये तो 150 है बट हम 200 से कंपेयर कर रहे थे पहले। आफ्टर स्टॉक स्प्लिट हम इसको कंपेयर करेंगे 100 से, तो वी विल हैव टू चेंज द डिवाइजर। समझ में आया?
So this question wherein they say कि what changes do we need to do in an in a price weighted index, we will have to adjust the index divisor. ठीक है सर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ हाईलाइट करके रखना. इफ़ दिस क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, अ पैट ऑन योर बैक. ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन 9. इक्वल वेटेड इंडेक्स टिपिकली शो हायर रिटर्न्स देन कैपिटल मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स व्हेन. तो पहले हम ये समझ जाते हैं कि व्हाट इज़, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ इक्वल वेटेड इंडेक्स एंड अ मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स. इक्वल वेटेड इंडेक्स जितने भी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, दे गेट इक्वल वेट्स. हाउएवर जो मार्केट कैप वेटेड होता है, मार्केट में जिसको रिस्पेक्ट दी हम उसको लेंगे. अगर मार्केट में किसी ने डिसरिस्पेक्ट करी है किसी स्टॉक को, बहुत कम वैल्यू की है वो स्टॉक, तो हम उसको उतना ही लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे. तो इक्वल वेटेड इंडेक्सेस टिपिकली शो हायर रिटर्न्स दैन मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स व्हेन. अगर लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर रहा है तो मार्केट इंडेक्स तो वैसे भी उसी को ही फॉलो कर रहा है, उसी को ही रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो तो बढ़िया करेगा ही करेगा. बी इज़ स्मॉल कैप आउट परफॉर्म. स्मॉल कैप्स में क्या था, हमने यहाँ पे उनको अच्छा वेट दिया था, बट यहाँ पे मार्केट वेटेड में हमने उनको वेट ही नहीं दिया, तो यहाँ पे तो वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, तो इक्वल वेटेड में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. दैट इज़ वाई द आंसर इज ऑप्शन बी, स्मॉल कैप्स व्हेन दे आउट परफॉर्म, क्योंकि उनकी वेटेज इन इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो इज मोर देन अ मार्केट वेटेड पोर्टफोलियो, तो दैट इज़ वाई दे विल आउट परफॉर्म. And lastly, which of the following is an example of a style index? So what do we mean by style? Style is, are we going for growth related stocks? Growth related stocks मतलब जिनका बहुत हाई प्राइस मल्टीपल्स रहता है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या स्टाइल रिलेटेड स्टॉक्स ले रहे हैं विच आर वैल्यू ड्रिवन. नॉट स्टाइल, विच आर वैल्यू ड्रिवन. तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन ए, निफ्टी मिड कैप ग्रोथ. इट इज गोइंग टुवर्ड्स ग्रोथ स्टॉक्स विच शो अ लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, विच आर राइट नाउ ट्रेंडिंग इन द मार्केट, विच आर गोइंग अपवर्ड्स इन द मार्केट. हम उसी की तरफ लेके जाएंगे, तो दैट इज़ वन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. ठीक है सर. अब आ जाता है चैप्टर 3, मार्केट एफिशिएंसी. मार्केट एफिशिएंसी में कौन सा क्वेश्चन है? First question, that is, which form of efficient market hypothesis states that it reflects all past market data? तो weak form does it say B says या C says? वैसे तो all से कि अगर efficiency है तो all past market data has already been incorporated into the market price. Correct? What do we mean by market efficiency? Market efficiency मतलब जो news है has already been incorporated in the price. Incorporated in the price. We also had a capsule revision on this wherein we took the example of Swiggy, if anyone remembers. ठीक है, हमने स्विगी का एग्जाम्पल लिया था जिसमें उसका प्राइस उस टाइम पे 409 था. इट कम्स आउट विद अ पोल्ट्री फार्मिंग का एक फीचर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग. तो हाउ विल दैट अफेक्ट ये 409 का शेयर प्राइस, है ना? इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, डू वॉच इट. इट विल गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी on market efficiency and how news articles or news gets incorporated in price and how can you take advantage of that. ठीक है सर. तो इसमें कह रहे हैं कि which will allow you which form of efficiency says all past market data has already been reflected in the price. Strong says yes, semi strong says yes, weak form also says, but which is the distinguishing factor, which form first says कि all past market data has been included? It is weak form. सेमी स्ट्रॉन्ग तो वैसे ही कहता है, सेमी स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ऑल पास्ट मार्केट डेटा एंड एट द सेम टाइम ऑल जो कंपनी रिलेटेड डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड डेटा है, वो भी. बट who which form of market efficiency says only past market data, that is weak form. ठीक है. फिर आता है डिस्क्राइब अ मार्केट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट अर्न्स abnormal returns using annual report information. एनुअल रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है हमारी? फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है. फंडामेंटल एनालिसिस. Which form of efficiency says fundamental analysis can help you earn? This form. Semi strong says you cannot earn. तो यही कह रहे हैं कि when will it contradict? It will contradict when it is semi strong form of efficient market hypotheses. ठीक है. Which of the following is an example of market anomaly? Market anomaly हमें पता है. What is a market anomaly? January effect. What is CAPM? It is a model for calculating cost of equity. So this is not an anomaly, and this is a valuation model.
वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है सर, तो दिस इज़ नॉट अ मार्केट अनोमली, मार्केट अनोमली इज़ ओनली ऑप्शन ए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरल फाइनेंस सजेस्ट्स इन्वेस्टर्स में ओवर रिएक्ट ड्यू टू रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन, लॉस अवर्जन या एफिशिएंट एलोकेशन। व्हाट डू वी मीन बाय बिहेवियरल फाइनेंस? बिहेवियरल फाइनेंस सेज कि जो आपने ट्रांजैक्शंस करनी है वो आप करोगे ही करोगे, प्लस एट द सेम टाइम यू टेक इनटू अकाउंट योर बायसेस, यू टेक इनटू अकाउंट ह्यूमन इमोशंस। तो we all have some emotions या biases that overpower when we have to take decisions। अगर हम न्यूट्रल ही रहते तो बिहेवियरल फाइनेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। तो ए कैन नॉट बी द आंसर। एफिशिएंट एलोकेशन तभी होगी अगर बिहेवियरल फाइनेंस नहीं होगा, तभी तो आप एफिशिएंटली, अगर आपने ये खरीदना ये बेचना है आप तभी कर लोगे, बट बिकॉज देर इज बिहेवियरल फाइनेंस दैट इज वाई देर इज इनएफिशिएंसी। तो व्हाट डू वी मीन बाय लॉस अवर्जन, एक इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय लॉस अवर्जन? लॉस अवर्जन मीन्स जब 100 रुपीज़ का गेन होएगा या 100 रुपीज़ का लॉस होएगा, इससे जो लॉस होएगा यू विल फील मच मोर बैड फ्रॉम जो 100 रुपीज़ का गेन होएगा। तो आपको दुख ज़्यादा होगा वो 100 रुपीज़ खोने का दैन द खुशी ऑफ गेनिंग 100 रुपीज़। तो अगर मैं आज आपको रुपीज़ 100 दूँ आप खुश हो जाओगे, या मैं आपको बोल दूँ आप मुझे 100 रुपीज़ दे दो आप दुखी हो जाओगे। जो आपको 100 रुपीज़ देने का दुख होएगा वो ज़्यादा होगा दैन गेटिंग 100 रुपीज़। और अगर कोई कहता है कि नहीं सर मुझे तो दुख नहीं है, तो प्लीज़ आप पेटीएम कर दीजिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मार्केट्स आर एफिशिएंट द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स वुड बी पैसिवली इन्वेस्टिंग। मार्केट्स हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द प्राइस, आपको कुछ नहीं करना, आप इन्वेस्ट करो और भूल जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, दैट इज़ पैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, देखो हम आ गए हैं फोर्थ चैप्टर पे, दैट इज ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज़। इक्विटी सिक्योरिटीज़ में हमने क्या पढ़ा था? इट वाज ऑल अ बेसिक अबाउट इक्विटी, व्हाट इक्विटी इज, व्हाट आर द टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। तो नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन इक्विटी? जो कॉमन इक्विटी शेयर्स हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक? ओनरशिप मिलती है हमें, येस। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मिलते हैं, येस। बट हमें गारंटीड रिटर्न्स नहीं मिलते, देयरफॉर आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स 1 वोट पर शेयर? क्यूमुलेटिव वोटिंग नहीं, स्टैट्यूटरी वोटिंग करेक्ट। व्हाट डू वी मीन बाय स्टैट्यूटरी वोटिंग? अगर देर इज़ 1 पोजिशन अवेलेबल और आप 100 शेयर्स होल्ड करते हो तो आप उस टाइम पे सिर्फ एक वोट दे सकते हो, क्योंकि वो आप एक पोजीशन की ही बात हो रही है। हाउएवर क्यूमुलेटिव वोटिंग क्या होती है? क्यूमुलेटिव वोटिंग में आप 100 शेयर्स के जो वोटिंग राइट्स है आप एक पे एग्जॉस्ट कर सकते हो, आप 100 के 100 यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ क्यूमुलेटिव, हाउएवर दिस इज स्टैट्यूटरी वोटिंग। ठीक है, प्रॉक्सी वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग इज अन अदर कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, जिसमें दे टॉक वोटिंग ऑन बिहाफ। तो ये तो पूछा ही नहीं था, तो ठीक है, दिस इज अन अदर ऑप्शन। फिर आता है क्वेश्चन 18, participating preference shares allow shareholders to receive extra dividends, higher dividends if profit exceeds the threshold, convert into common shares या have voting rights। ये तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। हैव वोटिंग राइट्स ये तो इक्विटी शेयर्स का हो गया। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, दैट इज receive higher dividends if profits exceed a threshold, they are able to participate in, they are able to participate in the higher profits of the firm, therefore the name participative, participate, participating। ठीक है सर, अब आता है व्हाट डू वी मीन बाय डिपॉजिटरी रिसीट्स? डिपॉजिटरी रिसीट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इससे पहले ना आई जस्ट शेयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो, ताकि ना वी नो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। तो वी नो डिपॉजिट रिसीट्स में कोर्स में हमने दो टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स है, वन इज़ ADR, द सेकेंड इज़ GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, उसको कुछ फंड्स रेज़ करने हैं, तो ही गोज़ टू अ बैंक, ही गोज़ टू सिटी बैंक, ठीक है, इन अमेरिका, टू सेल सम ऑफ इट्स इक्विटी, कि सर आप इतना इक्विटी हमसे ले लो या इतना आप इक्विटी हमसे ले लो 40%,
आप ये ले लो और हमें इन रिटर्न पैसा दे दो। तो सिटी बैंक यूएस में क्या करता है, उसका इंडिया में भी ब्रांच होगा सिटी बैंक का। सिटी बैंक क्या करता है, सिटी बैंक मुंबई का जो ब्रांच है वहाँ पे ये शेयर्स ट्रांसफ़र कर देता है एंड पूछता है कि इफ़ देयर आर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग, तो आप ये आगे इन्वेस्टर्स को बेच दो। एंड इन्वेस्टर्स तो चाहेंगे भाई हमारे पास यूएस की सिक्योरिटीज़ हो, तो दीज इन्वेस्टर्स पे रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ जाते हैं मुंबई बैंक के पास, मुंबई बैंक आगे अमेरिकन बैंक को दे देता है और ये फिर अमेरिकन बिजनेसमैन को दे देता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स वेयर सिक्योरिटीज़ रिप्रेजेंटिंग फॉरेन शेयर्स आर ट्रेडेड लोकली। तो ये जो शेयर्स है वैसे तो दे शो ओनरशिप इन अमेरिकन बिजनेस बट दे आर ट्रेडेड लोकली। ठीक है सर, तो द आंसर इज ऑप्शन बी। हमें ये भी समझ में आ गया व्हाट इज अ डिपॉजिटरी रिसीट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, अब आता है अ कंपनीज ROE इंक्रीजेज इफ, व्हाट डू वी मीन बाय ROE? ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सर फुल फॉर्म नहीं, हमें चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है, पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो हाउ कैन ROE इंक्रीज? ROE कैन इंक्रीज टू वेज, या तो पैट जो हो ये इंक्रीज हो जाए या जो इक्विटी है ये डिक्रीज हो जाए, तब वी कैन से ROE इज राइजिंग। तो वील फाइंड ऑप्शंस वेयर पैट इज इंक्रीजिंग या इक्विटी इज डिक्रीजिंग। इशू न्यू शेयर्स, अगर इशू न्यू शेयर्स हो गए तो इक्विटी विल राइज, ओवरऑल ये जो होगा विल फॉल, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स कैन नॉट बी द आंसर, वाई? लेट अस सी। हमें पता है EBIT तक हमारा कैलकुलेशन क्या रहता है, रेवेन्यू से वी डिडक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वी कम एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद वी कम एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे हमने इंटरेस्ट माइनस किया, वी कम टू EBT दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। हमने टैक्स डिडक्ट किया तो दिस कम्स आउट टू बी EAT और PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसका देर आर टू पोर्शंस, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड। तो द क्वेश्चन सेज अगर रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज तो पैट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स इज अ पार्ट ऑफ पैट। तो अगर ये इंक्रीज होएगा तो डिविडेंड विल हैव टू डिक्रीज, ओवरऑल पैट तो विल रिमेन द सेम होनी ना, क्योंकि एक पैट का डिस्टिंक्शन है RE, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, द आंसर विल बी ऑप्शन सी देन विच सेज इशूज डेट टू रीपर्चेज इक्विटी, क्योंकि अगर हमने रीपर्चेज किया इक्विटी, जो बैलेंस शीट में इक्विटी है वो डिक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल जो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट विल राइज एंड दैट वाज व्हाट वी वांटेड। ठीक है सर, अब आ गया है लास्ट चैप्टर, ऑलमोस्ट 4-5 मोर क्वेश्चंस एंड डन फॉर द डे। कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, इसकी वी ऑल्सो हैव अ कैप्सूल रिविजन on the YouTube channel. If you want to watch it, I'll pin it यहाँ पे, a tag would be coming. Do watch the video. उसमें we understood the entire concept of what a report is, research reports हम पढ़ते कैसे हैं, उसमें आती क्या क्या details है. We also took a very practical example of KIMS, that was Krishna Institute of Medical Sciences. It is a healthcare entity जहाँ पे it has hospitals under it. कैसे कैसे patients आते हैं, average revenue हमने देखा था उसका per operating patient, ARPOB था वो शायद द टर्म दैट वी डिस्कस्ड, है ना? तो डू वॉच द वीडियो इफ़ इट एड्स वैल्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल लाइफ। इट टॉक्स अबाउट मॉडलिंग, इट टॉक्स अबाउट फोरकास्टिंग, इट टॉक्स अबाउट एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल्स इक्विटी में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, तो आप वो तो ज़रूर देखना। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन अ कंपनी रिसर्च रिपोर्ट? तो किम्स की रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं था? इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन था, हाँ, देयर वाज अ बाय रिकमेंडेशन, एक बैंड भी दिया था कि अगर इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो आप सेल भी कर देना, है ना? तो देयर वाज इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। रिस्क एनालिसिस दिए थे कि कंपेटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं टू फाइट कॉम्पिटिशन। हाउएवर एक चीज़ जो नहीं थी वाज ऑप्शन बी, एनालिस्ट फैमिली बैकग्राउंड। हमारे बैकग्राउंड, जो एनालिस्ट का बैकग्राउंड होगा उसके बैकग्राउंड से क्या लेना देना है क्लाइंट को, तो दिस विल नॉट बी देयर। ठीक है, फिर आता है रेवेन्यू एनालिसिस यूजिंग सेल्स वॉल्यूम वर्सेस इनटू प्राइस। तो अगर एक एंटिटी है जैसे नेस्ले, नेस्ले ऑल्सो सेल्स मैगी, ऑल्सो सेल्स नेस्कैफे की कॉफ़ी, इट ऑल्सो सेल्स मेनी अदर थिंग्स। तो अगर नेस्ले नेस्ले का आपको रेवेन्यू जानना है तो आप इन तीनों का रेवेन्यू ऐड कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस विल बी सेल्स ऑफ मैगी डिवाइड इनटू द प्राइस ऑफ मैगी। एंड व्हाट टाइप ऑफ अ मॉडल इज दिस? दिस इज अ बॉटम अप मॉडल, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं।
तो दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच। फिर आता है pricing power of a company mainly depends on cost structure. How does the pricing power of a company affect? What is it affected by? आपकी कॉस्ट से अफेक्ट होता है प्राइस, बोल सकते हैं। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर से अफेक्ट होता है, अ वेरी बिग आंसर इज येस। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जैसे होएगी हमें उस हिसाब से प्राइसिंग रखनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी कैसी होएगी, कंपटीशन कैसे होगा, उसकी बेसिस पे हमें प्राइसिंग करनी पड़ेगी ताकि वी आर वेरी कंपेटिटिव एंड द सेम टाइम वी आर इवन एबल टू अर्न अ बिट ऑफ मार्जिन। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे तो नहीं कुछ भी अफेक्ट होता, तो दिस इज नॉट द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, लास्टली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू व्हाट? हमने ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा था, क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, क्या होता है? इट इज़ अ मेजर टू फाइंड ऑपरेटिंग रिस्क। और ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ ऑपरेशंस, रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस, धंधे करने का रिस्क। तो व्हाट इज इट? इट इज़ परसेंटेज चेंज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स। सेल्स बोल दो या रेवेन्यू। ठीक है, तो इट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू सेल्स चेंजेस। ठीक है सर, दीज आर द सोल्यूशंस बिलो। आपको अगर एक बारी गो थ्रू करना है, प्लीज़ गो थ्रू। आई होप मैंने सारे राइट आंसर्स ही दिए होंगे, बट इफ़ देर इज़ एनी ओवरलैप या कोई मिसमैच होगा तो प्लीज़ रीच आउट टू मी डाउन कमेंट्स में, या यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वी कनेक्ट ऑन यूजुअली लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करते हैं। तो कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, वी कैन डिस्कस। If you have any other query, if you look forward to more of such series, do let me know. We can come for each and every subject. FSA is very important, ethics is very very important, quants is very mathematical, कभी कभी solve भी नहीं होते questions. So you can let me know, we can come out with those type of series जहाँ पे just 20-25 minutes max half an hour में we are able to get through all questions और एक confidence आ जाए कि yes sir हम कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब पढ़ लेते हैं, बट द थिंग दैट मैटर्स इज व्हेन यू आर देयर इन द एग्जाम हॉल, वहाँ पे आप पैनिक ना करो। तो आप वहाँ पे पैनिक ना करो, उसके लिए बी प्रिपेयर्ड, सिम्युलेट द इंटायर एग्जाम एनवायरनमेंट बिफोर हैंड। कैसे सिम्युलेट कर सकते हैं? प्रिपरेशन करके और क्वेश्चन सॉल्व करके, जो कि हम दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है सर, if you want this entire PDF, let me know, I'll post it on my Telegram channel। ठीक है, you can access it from there। और भी कोई query हो, कोई भी doubt है, please reach out at any point in time। ठीक है, do not worry, I might get a bit late in responding, but I'll for sure respond। ठीक है, I hope this added value, if it did, do like the video। ठीक है, do subscribe, share it across with friends। This is a very very important chapter, very very important topic area, equity। So everyone should benefit। ठीक है, the reason for starting this channel was to share my learnings with you। So this is one way where I can share। If you have any other thoughts, any other comments, please do let me know। We can come out with a lot of series, a lot of different strategies to master and ace the exam। ठीक है, I hope I didn't take a lot of time, it added value, and please like the video। Bye bye, thank you।